Assalamualaikum. Welcome to the Electrical and Electronics Engineering MCQs. Friend, today I will discuss FPSC Assistant Engineer Electrical past paper MCQs. I already discussed part 1 MCQs. This FPSC Electrical MCQ series is very important for the preparation of electrical exam conducted by FPSC. This is the part 2 of the video. Friends, first question is question number 21. I already discussed 20 questions in part 1. So the 21 question is what type of current is produced by DC generator. फ्रेंड डीसी जनरेटर्स के बारे में पहले भी मैं एमसीक्यू की वीडियो बना चुका हूँ, उसका इंस्ट्रक्शन वर्किंग उसके एमसीक्यू भी बना चुका हूँ। प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो फर्स्ट चॉइस इज अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट करंट, ऑप्शन नंबर सी पल्सेटिंग करंट, ऑप्शन नंबर सी डी नन ऑफ द अबव। A DC generator produces the direct current. Option number B is correct choice, direct current. Question number 2. Electrical resistance is measured in option A volts, option B ampere, option C ohms, option number D watts. Electrical resistance is measured in ohms. Ohms is the correct choice. The unit of resistance is ohm. Option number C is correct choice. Question number 23. The unit of inductance, option A farad, option number B ohm, option number C Henry, option number D Tesla. The unit of inductance is ohm. Sorry guys, correct choice है. The unit of inductance is Henry. Option number C is correct choice. Friend, काफी इंतहाई बेसिक क्वेश्चन है ये. Question number 24. What is the function of relay in switchgear system? Produce the voltage, detect the faults and initiate the circuit breaking, transform the current, store the electrical energy. तो correct choice है friend, direct. Detect the faults and initiate the circuit breaker. Option number B is correct choice. Question 25. How many phases are there in standard residential electric supply in Pakistan? स्टैंडर्ड रेजिडेंशियल के लिए फ्रेंड जो है जो सप्लाई है वो सिंगल फेज सप्लाई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 26. व्हाट डज अ वाट मीटर मेजर? ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन नंबर बी करंट, ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक पावर, ऑप्शन नंबर डी रेजिस्टेंस। द वाट मीटर मेजर इलेक्ट्रिक पावर। इसी तरह वोल्टेज मेजर करेंगे तो वोल्ट मीटर यूज होगा, एम्पेयर मीटर करंट फाइंड करने के लिए, तो वाट मीटर जो इलेक्ट्रिक पावर फाइंड करने के लिए यूज होता है। रेजिस्टेंस जो है वो आप ओम मीटर से मेजर करते हैं। करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन 26 फ्रेंड्स. विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स? एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी प्लास्टिक, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी वुड. सो द करेक्ट चॉइस इज copper is a good conductor of electricity, so it is commonly used in electrical conductors. Option number B, C is correct choice. Question 28 friends. 28 number question है. The efficiency of a transformer is calculated by, efficiency basically output power divided by input power multiplied by 100. तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो उसमें इन तमाम ऑप्शन में से करेक्ट है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर इनटू 100. क्वेश्चन नंबर 29. What is the primary purpose of capacitor in AC circuit? कैपेसिटर के AC सर्किट में मेन पर्पज क्या है? स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रोवाइड द रेजिस्टेंस, इम्प्रूव द पावर फैक्टर्स, कन्वर्ट AC टू DC. द करेक्ट चॉइस जो है फ्रेंड्स में पावर फैक्टर की इंप्रूवमेंट के लिए इसे यूज किया जाता है। पैरेलल में शंट कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन 30. Which of these is a semiconductor device? Option number A diode, option B transformer, option C transistor, option number D relay. तो फ्रेंड जो डायोड है वो सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इसमें ट्रांजिस्टर जो है ये भी सेमीकंडक्टर डिवाइस है। तो करेक्ट चॉइस है इसमें फ्रेंड्स बोथ ए एंड सी इज करेक्ट चॉइस। बोथ द डायोड एंड ट्रांजिस्टर आर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। क्वेश्चन 31 क्वेश्चन है. व्हाट डज द वोल्ट मीटर मेजर? ऑप्शन ए
इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पावर. Correct choice is the voltmeter meter measure electric potential difference between the 2 points. Option number C is correct choice. एम्पेयर मीटर जो करंट को मेजर करता है, रेजिस्टेंस जो ओम मीटर से, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर से, पावर जो है वाट मीटर में से. करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस. क्वेश्चन 32 है फ्रेंड्स. 32 द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. रेजिस्टेंस की यूनिट है वो ओम्स है फ्रेंड्स. इसी तरह जो फ्रीक्वेंसी 2 बार रिपीट हो चुका है, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, एनर्जी की यूनिट जो है यहाँ पे जूल. तो करेक्ट चॉइस है फ्रेंड, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस. क्वेश्चन 33 है फ्रेंड्स. व्हाट इज द कॉमन मेथड ऑफ पावर ट्रांसमिशन? डीसी लाइंस, वायरलेस, ओवरहेड लाइंस, ग्राउंड लाइंस. द नॉर्मली जो यूज मेथड है वो ओवरहेड लाइन इज अ करेक्ट चॉइस फॉर मोस्ट कॉमनली मेथड फॉर पावर ट्रांसमिशन. क्वेश्चन 34. व्हाट इज द टिपिकल पावर फैक्टर ऑफ इंडक्टिव लोड? इंडक्टिव लोड जो उसका जो पावर फैक्टर वो लीडिंग होता है, लैगिंग पावर फैक्टर होता है, वो लेस देन 1 होता है. ऑप्शन नंबर ए यूनिटी इनकरेक्ट. ऑप्शन बी 0. ऑप्शन नंबर सी इज लेस देन 1, द लैगिंग पावर फैक्टर. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस. फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन है. एन एसी मोटर इज जनरली यूज्ड फॉर हाई पावर टॉर्क, लो पावर, कंटिन्यूस ऑपरेशन. ऑप्शन नंबर डी इंटरमिट यूज. तो करेक्ट चॉइस है फ्रेंड, द एसी मोटर इज जनरली यूज्ड फॉर कंटिन्यूस ऑपरेशन. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस. क्वेश्चन 36 है. 36 नंबर क्वेश्चन है. कम्युनिकेशन सिस्टम में से क्वेश्चन है फ्रेंड्स. इन बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम द डिवाइस मॉड्यूलेट द कैरियर फ्रिक्वेंसी. ऑप्शन नंबर ए ट्रांसमीटर, रिसीवर, मॉड्यूलेटर, एंटीना. सो द करेक्ट चॉइस इज इन बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम व्हाट डिवाइस मॉड्यूलेट द कैरियर फ्रिक्वेंसी. कैरियर फ्रिक्वेंसी को मॉड्यूलेट करने के लिए हमारे पास जो चीज़ होती है वो ट्रांसमीटर में बेसिकली ये प्रोसेस होता है. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस. क्वेश्चन नंबर 37. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कई मरतबा फ्रेंड ये एफपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन से पहले कई मरतबा रिपीट हो चुका है. द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज वाट. ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस. क्वेश्चन 38 है फ्रेंड्स. क्वेश्चन नंबर 38. विच डिवाइस कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द मैकेनिकल एनर्जी? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर. ऑप्शन नंबर बी जनरेटर. ऑप्शन नंबर सी मोटर. Motor is a device that converts electrical energy into the mechanical energy. Rectifier is a device that converts AC to DC. Transformer is a device that converts AC to AC. Generator is a device that converts mechanical to electrical. जो मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करती है. ऑप्शन सी करेक्ट चॉइस है. इसी तरह रेक्टिफायर जो है वो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है. करेक्ट चॉइस इज ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन 39 है फ्रेंड्स. द फंक्शन ऑफ आइसोलेटर is to conduct the electric current, is to store the energy, is to prevent the electric current flow, is to amplify the voltage. इंसुलेटर ये बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से प्रिवेंट करता है. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस. क्वेश्चन 40 है फ्रेंड. विच आर द फॉलोइंग इज अ हीटिंग सिस्टम कंपोनेंट? ऑप्शन नंबर ए कैपेसिटर. ऑप्शन नंबर बी पंप. ऑप्शन नंबर सी फर्नेस. ऑप्शन डी ट्रांसफार्मर. करेक्ट चॉइस है हीटिंग सिस्टम कंपोनेंट इज अ फर्नेस. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट चॉइस. फ्रेंड्स ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा. जो भी स्टूडेंट एफपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो तमाम स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को शेयर करें. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज है. इलेक्ट्रिकल एमसीक्यू एफपीएससी के जो जितने भी पास पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं उनको ये कवर कर रही है एमसीक्यू सीरीज. फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी. थैंक यू.